First of all, good evening, everybody. Secondly, we shall be today starting with, or rather, I will say, continuing with the topic where we had left in the previous lecture. Right? So, we have taken lot many number of lectures around, and out of that, we started with the concept of electrophysics. And we have reached up to the point where we have discussed the heating effect of electric current. Yes or no? Right? So, out of the three effects that we are in the process of seeing in this chapter, the first effect, which is flow of electrical energy, had already been discussed. Second effect, heating effect of electric current, is also discussed. Third effect is magnetic effect of electric current, which we'll be discussing today and in the coming lectures around. But in the previous lecture, there was something which I had started with called as conversion of units. You guys remember that? Yes, no? We had started with heating effect of electric current. वो फॉर्मूला हमने यूज किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, और वहां से हमने स्टार्ट किया था और कंटिन्यू कर लिया था. कंटिन्यू करने के बाद में जो लेक्चर का एंडिंग पार्ट था, जो लास्ट पार्ट था, दैट वाज बेसिकली द कन्वर्जन थिंग, राइट, which we did not cover live, but I recorded the session and given it to Sailesh sir. He would have forwarded that entire lecture recording to you people, right? So I was expecting कि वो उस पूरे recording का जो लास्ट का पार्ट है, 15 से 20 मिनट का जो लास्ट का पार्ट है, उसमें मैंने पूरा कन्वर्जन डिस्कस किया हुआ है कि जूल्स को किलो जूल्स में कैसे करना है, किलो जूल्स को जूल्स में कैसे करना है, जूल्स और अर्ग्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, राइट? जूल्स और कैलोरीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जूल्स को कैलोरीज में कैसे कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी क्या होता है, किलो कैलोरी को कैलोरी में कैसे रखना है, ये सारी बातें उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है. और मैं चाहता हूं कि आप लोग वो सारी चीजों को बार बार देखें. That conversion part is needed to be looked over again and again. It is very, very important, because unless and until you do that, your content will not get to the strength which is really, really needed. Right? Yes. यहाँ से मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ. This is very special. Right from this point now, hereforth, in all the chapters that you do, if it is the part of physics, you must understand that the best way to study and to understand physics is numericals. Let me repeat. The best way to study and to understand physics is numericals. Okay, so whatever formula you have, whatever derivation you have, whatever understanding you get to have from the study of physics, it has to be worked over onto the numericals. If you are able enough to solve the numericals as and when it is given, it means you are knowing the concept of physics well. If you are unable to solve, then you will not know what exactly the physics is. Clear? We'll continue from this point. And to start with numericals, let me tell you something. Okay, for solving any physics numerical, what are the things that you need to have in your mindset and in your brain? Right? First thing, formula. Second thing, derivation. So derivation of formula. ये दोनों बातें होनी चाहिए. Are you getting my point? Yes. तो first thing is formula, second thing is derivation of formula. अगर आपको formula का derivation आता है, तो formula का application आपके लिए difficult नहीं होगा. अगर आपने सिर्फ formula रट्टा मारा है, तो उसका application बहुत बड़ा challenge हो जाएगा. और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि फिजिक्स को वो लोग फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, बट फॉर्मूले का डेरिवेशन उनको नहीं मालूम है. वो फॉर्मूला किस सिनेरियो में डिराइव किया गया, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो वो किस सिनेरियो में अप्लाई होगा, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. गेट इट? यस. तो उसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए. तो पहला फॉर्मूला, दूसरा डेरिवेशन. एक तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली लोग नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं करते इसलिए उनका फिजिक्स वीक है. जब आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल देखते हो, कोई भी न्यूमेरिकल, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर एक सीन दिया होता है, एक सिनेरियो दिया होता है, एक कहानी दी होती है. राइट? यस. आप उस क्वेश्चन में से उस कहानी को निकालिए.
उस न्यूमेरिकल में से उस कहानी को निकाल कर लेकर आइए। अगर आप उस सीन की कहानी को बाहर निकाल लेंगे तो फायदा ये होगा कि आपको उस सीन के अंदर सारी चीजें एज इट इज दिखाई देने लगेंगी। एंड व्हेन यू स्टार्ट seeing everything in the way it exists, it will become very easy for you to understand the application, क्योंकि वो डेरिवेशन से आप तुरंत उसको मैच कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? तो जब आपने न्यूमेरिकल का कोई भी क्वेश्चन देखा तो वो सीन पहले आप इमेजिन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस इमेजिनेशन को पेपर पर उतारो। द बेस्ट वे टू पुट द इमेजिनेशन ऑन पेपर इज ड्राइंग। आप उस क्वेश्चन में जो भी इमेजिन कर पाते हो उसको ड्राइंग के फॉर्म में अपने पेपर पे उतार लो। जैसे ही ड्राइंग की फॉर्म में आप पेपर पे उतारोगे उसको हम डायग्राम बोलते हैं या फिगर बोलते हैं, ठीक है? बराबर वैसे आपका पूरा का पूरा जो सिनेरियो है एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर? यस। तो न्यूमेरिकल्स की सुपर बेसिक्स जो आपको आनी चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। शैल वी कंटिन्यू? राइट? यस। सो फॉर्मूले मैं चाहता हूं आप लोग 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम लो और हमने जितने फॉर्मूले अभी तक किए हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर वो सारे फॉर्मूले आप फटाक से देख लो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम बाय वॉच, जल्दी से करो फटाफट। रिकॉर्डिंग पीपल विल पॉज द वीडियो एंड देन टेक 5 मिनट्स टाइम। So here we go with our book, right? So we had already discussed these things in the earlier topics, and in the previous lecture we have tried to go through this particular concept. Can you see this? I'm just highlighting it up for you guys. So this was the actual concept. Here we go. I'm just boxing it up for you. I hope it will be okay. Here we have. This was the concept we tried to get across. Hope you guys remember. Right? यहाँ से हमने शुरुआत की थी और हम काफी हद तक चीजों को लेकर गए थे और पूरा का पूरा ये कंसेप्ट ही हमने डिस्कस किया था कि हाउ इज द हीट एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट बीइंग टेकन केयर ऑफ। नाउ ये देखिए ओम्स लॉ पूरा आपके सामने है। ये देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, याद आया कुछ? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हमने डिस्कस किया था, यस कि नो? पावर इज वॉट, तो हमने 1 किलोवाट आवर वगैरह की बात की थी और उसके बाद ये हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू सी दिस? ये हमारा चैप्टर है। सो कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा। दिस वाज द टॉपिक ऑफ प्रीवियस लेक्चर। इसमें आप लोग देख लें, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये पेज नंबर वगैरह सब कुछ है, यहाँ पर पेज नंबर 48 पे इन डिटेल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके राइट? देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, कैन यू सी दिस? This is coil. Yes, this is coil. This is one coil, which is called as solenoid. अगर मैं ऐसी ही कॉइल को और ज्यादा घुमा दूं तो वो ऐसा बन जाएगा। समझ में ये बात? यस यस कि नो? मैं दिखाता हूं। अभी देखो एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम लोग, एक छोटा सा टुकड़ा। ये देखो ये है वो टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा है। दिस छोटा सा टुकड़ा जो है, ये वाला छोटा सा टुकड़ा, वो यहाँ पर देखो एक्सपांड करके लिखा हुआ है। ओके, दिस इज सोलेनॉइड टाइप। ये कहाँ से मिला हमको? ये छोटे से टुकड़े से। इसको हम और ज्यादा घुमाएंगे तो हमको एक नया कॉइल्ड कॉइल मिलेगा। ये इसको बोलते हैं कॉइल्ड कॉइल, मतलब कॉइल से बना हुआ कॉइल। ओके, यहाँ पे इक्विपमेंट्स का नाम लिखा हुआ है कि ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनके अंदर हीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वी ऑल ऑलरेडी नो दोज इक्विपमेंट्स, यस कि नो? राइट? फिर भी मैं बता दूं कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। ये देखिए आप, इफ यू वांट यू कैन सी इट। पहला वाटर बॉयलर, यस। दूसरा ये देखिए इलेक्ट्रिक कुकर, मैंने टिक किया, कैन यू सी दिस? तीसरा इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट?
मेक यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद कॉइल्स की लोगों ने बात की है। कॉइल्स के बारे में बात करते हो तो कुछ नाम लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को ये नाम भी दिखा देता हूँ। ये मैं इसलिए आप लोगों को वीडियो में दे रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये देखो कौन से कंडक्टर यूज करते हैं इन सारे डिवाइसेस में हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और कौन सी वाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये देखो जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हम ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। सर ऐसा क्यों? हेलो यस सर, लास्ट 5 मिनट्स। जस्ट 1 सेकेंड। तो हियर वी गो कि हम ऐसे कंडक्टर्स को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। सर ये रेजिस्टिविटी हमको ज्यादा क्यों चाहिए, अभी हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले आप देख लीजिए, राइट। फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर उन कंडक्टर्स का नाम लिया गया है जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यस तो सर कौन कौन से ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है? ऐसे तो बहुत सारे कंडक्टर हैं, पर आपके सिलेबस में जो कंडक्टर्स का नाम दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैं आप लोगों को उन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। यस अंडरलाइन करूंगा, आप लोग उस अंडरलाइन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला जिस कंडक्टर का नाम है वो कंडक्टर है एलॉय ऑफ निक्रोम। देख रहे हो, एलॉय ऑफ निक्रोम, ठीक है। इस एलॉय ऑफ निक्रोम को हम कहां पर यूज करते हैं सर? इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में एज अ रेजिस्टर, ठीक है। दूसरे का नाम है अ टंगस्टन वायर। कैन यू सी दिस? इसको हम कहां यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में। समझ आ रही है क्या बात? ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, कौन से? एलॉय ऑफ निक्रोम और टंगस्टन वायर। एलॉय ऑफ निक्रोम कहां यूज होता है? इलेक्ट्रिक हीटर या फिर कुकर में। और टंगस्टन वायर कहां पर यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है सर, इसको हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द रीजन? देखो रीजन भी दिया हुआ है, आई विल शो यू द रीजन आल्सो, जस्ट लुक हियर। ये देखो, बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर गेट्स हीटेड टू नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस। समझा क्या? क्या होता है करंट की वजह से ये वायर जो है वो 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जिसकी वजह से उसमें से लाइट आती है। सर कौन सा वायर? कौन सा वायर? टंगस्टन वायर। कौन सा वायर? टंगस्टन वायर। तो ये आपका गिव रीजन हो सकता है, दिस इज गोइंग टू बी अ गिव रीजन। व्हाई इज अ टंगस्टन वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? इसको आप नोट कर लीजिए। व्हाई इज, नोट कर लीजिए, इट इज गोइंग टू बी गिव रीजन। व्हाई इज अ टंगस्टन वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? और इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। A tungsten wire is used in an electric bulb. Why? Reason क्या है उसका? रीजन यही है कि because of the current the wire gets heated to nearly 3400 degree Celsius. Because of the current the wire gets heated nearly up to the, ये जो यहाँ पर आंसर है देखो ये लाइन है ना, it gets heated nearly up to 3400 degree Celsius and emits light. ठीक है। और ये सिर्फ लाइट ही एमिट नहीं करता है, हीट भी एमिट करता है। इसलिए आपका बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब वो थोड़े समय के लिए जलता है ना तो गर्म हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है? आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है थोड़ी देर के लिए अगर जला दीजिए तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइट के साथ में वो हीट भी एमिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि सर टंगस्टन वायर गेट्स हीटेड टू नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है। इस पैराग्राफ को आप लोग समझिए, इसको टिक करके रखिए और इसको गो थ्रू करिए। आई वांट यू पीपल टू जस्ट रीड दिस पैराग्राफ वंस अगेन एंड जस्ट टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड। जस्ट रीड दिस पैराग्राफ फॉर रिकॉर्डिंग people, pause the recording and then read it. For others, just read this paragraph. So as we had studied the formula for electric current ka complete world, let us try to understand what exactly is the application of it. We had already done that.
we have seen the textbook record and all those stuffs, from where we are able to connect the formulae and not the formulae, the application part of heating effect is. हम यहाँ पर जो टंगस्टन यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर टंगस्टन है ना, थोड़े से ही करंट में 34 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो सकता है। थोड़े से ही करंट में क्या होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाता है सर। इसकी वजह से ये लाइट एमिट करता है, लाइट को एमिट करता है। सो एमिट्स लाइट, एमिट्स लाइट, ठीक है। और इसके साथ साथ में सिर्फ लाइट ही एमिट नहीं करता है, थोड़ा सा हीट भी एमिट करता है, हीट एज वेल, लाइट्स के साथ में थोड़ा सा हीट भी एमिट करता है। इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? सो जब भी हम बल्ब जलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, क्लियर, राइट? ये आप लोग नोट करिए, जस्ट नोट दिस डाउन इन द वे आई हैव रिटन। Please note this entire part. While noting, you can put the numbers also. This is first note, second note. The board okay? प्रदीप, तुम्हारे यहाँ से डेटा का इशू है, बिकॉज अदर पीपल आर फाइंडिंग इट ओके। Here we go, guys. 1 unit in your electricity bill. This is very important type of question which I am going to address now. आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट लिखकर आता है, मीटर में भी देखो, देख के आता है ना। आपने कभी अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखा है? उसमें लिखकर आता है आपने कितना यूनिट यूज किया। तो वो जो आपने यूनिट यूज किया वो किसका है? वो एनर्जी कंजम्पशन का है। तो 1 यूनिट मतलब कितना? अगर आपने मान लीजिए 100 यूनिट यूज किया, तो अगर आपको 1 यूनिट के बारे में मालूम है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, बराबर है ना? तो 1 यूनिट का मतलब कितना होता है जरा देखते हैं। तो 1 यूनिट का बेसिक मतलब क्या होता है, देखो, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अभी हमने नोट में कुछ देखा ना, 1 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है कि आपने 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में यूज किया। क्या? ये एनर्जी है।
ये पावर है और ये टाइम है, याद है ना, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी होता है, दिस इज द फॉर्मूला, बराबर ना। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ पावर, 1 यूनिट ये एनर्जी है, 1 किलोवाट, किलोवाट, और ये 1 आवर, 1 किलोवाट क्या हो गया, पावर हो गया, और ये आवर क्या हो गया, टाइम हो गया। अब जरा देखो आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। सर इससे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कितनी एनर्जी यूज की, क्योंकि एनर्जी तो हम लोग जूल्स में बात करते हैं, एनर्जी हम लोग किस में बात करते हैं, जूल्स में बात करते हैं ना। एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, जूल्स, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड्स। तो जरा देखते हैं कितना जूल्स और कितना सेकेंड्स होता है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1000 वाट, और 1 घंटे का मतलब कितना सेकेंड्स हो गया, कितना, 60 सेकेंड। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल्स होता है। मैं सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो। तो सर ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, वॉट सेकेंड, बराबर है ना, यस और नो। अभी देखो आप, ये हो गया 1000 वाट, वाट सेकेंड की बात हो रही थी, अब आप सॉरी 60 इंटू 60 सेकेंड्स, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितने सेकेंड्स हो गए, 60 इंटू 60 ना, बराबर ना, 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए, राइट। अच्छा सर, 1 वाट, सुनना जरा, 1 वाट कितना होता है, 1 वाट, 1 वाट कितना होता है सर, 1 वाट होता है 1 जूल्स अपॉन 1 सेकेंड, याद है क्या, 1 वाट कितना होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, बराबर है ना, क्योंकि वाट क्या है, पावर, और पावर का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, यस, है ना। तो दिस इज 1 जूल, दिस इज 1 सेकेंड, तो 1 वाट का मतलब 1 जूल 1 सेकेंड, तो 1000 वाट का मतलब क्या होगा, 1000 का वाट का मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा 1000 जूल्स अपॉन 1 सेकेंड्स, है कि नहीं, बराबर ना, यस नो, समझ में आ रही है बात नहीं है या नहीं आ रही है। जैसे आपने 1000 वाट को लिखा 1000 जूल्स पर सेकेंड, तो दैट बिकम्स 1 वाट, है ना। अच्छा सर एक बात और करते हैं, इनटू ये जो आपने 60 लिखा है, सर इसको मैं 3600 लिख सकता हूँ क्या, 3600 सेकेंड्स हो गया ये, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये सेकेंड और ये सेकेंड कट कर सकता हूँ, सर बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो 36, और ये कितना जीरो, इधर 3 इधर 2, तो कितना हो गया 5, इतना जूल्स, ये सुनो, बराबर। तो एक यूनिट कितना होता है सर, एक यूनिट होता है 36 इंटू 10⁵ जूल्स, समझे क्या, है ना। क्या मैं 36 को ऐसा लिखना चाहूं, अगर ऐसा 3.6 इंटू 10 तो चलेगा, 36 को मैंने 3.6 इंटू 10 लिखा, चलेगा, नहीं चलेगा, अंकुर क्यों नहीं चलेगा, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज 3.6 इंटू 10, इट इज 36, Because हाँ sir, हाँ बोलो, because it is not proper. इट इज नॉट प्रॉपर क्या, सर यहाँ रेशटू में 5 है तो यहाँ 6 आएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे हमें 36 ये तो मिला हुआ है ना ऑलरेडी यहाँ पर, ये देखो जो तुम बोल रहे हो हाँ यहाँ तो पर लिखा हुआ है, ये देखो 1 यूनिट ये हमको सर मिल चुकी,
हमने मल्टीप्लाई किया तो मिल गया। अभी मैं पावर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे Yes. गेम खेल रहा हूँ, मैंने सारे पावर को 10⁵ लिखा। अब मुझे इसको सिंगल डेसिमल बनाना है इंस्टेड ऑफ 2 डेसिमल, तो 36 कैन बी रिटन एज 3.6 into 10. What is the problem? There is Sir, no because problem. 10 is a 6 raised to. No, it's not 6⁵. Why will it be 6⁵? This 36 I'm writing as 3.6 into 10. Can you see this? Yes. It can be written, and 10⁵ is already here. So it will become, ये 10 है, 10⁵1. This will become 3.6 into 10⁵6 joules. So actually 1 unit in your electricity bill, 1 unit in your electricity bill means 3.6 into 10⁵6 joules. This is what your electricity bill means. 1 unit is equals to 3.6 into 10⁵6 joules. यह आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलता है। Are you getting my point? Yes, sir. Your electricity bill says it is 3.6 into 10⁵6 joules, 1 unit. And this is the current. Bolo. Sir, when I use in 1 hour. No. Those who have not noted, please note it up. एकदम फटाफट नोट करो। जस्ट फ्यू मिनट्स का रिमेनिंग, इसके बाद हम सेशन वापस कंटिन्यू करेंगे। Is it okay? Shall I rub this off? Okay, I'll do that. हो गया। So here we go. So I've written something on board. I'll just pin my board on. Right? So we are going to now discuss the concept of short circuit and fuse wire. You must have heard this word again and again many number of times. Okay. So now the point is, sir, what is short circuit and what is fuse wire? Right? Why is this fuse wire used, and all those reasons will be discussed by us. Please try to understand what exactly I'm trying to explain you. है ना? हम एक सिनेरियो समझते हैं, पर उस सिनेरियो समझने के पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, H is equals to VIT. पक्का? क्या? H is equal to VIT. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर by certain reasons करंट जो है, करंट या I इनफाइनाइट हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज बाय सर्टेन रीजंस I जो है वो इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी भी कारण से इस इक्वेशन के अंदर अभी I मतलब करंट था, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, T मतलब टाइम, ठीक है? तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट, तो ऑटोमेटिकली हीट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट हीट मतलब इतना गर्म हो जाएगा कि वो आग लग जाएगा या तो ब्लास्ट हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? कोई हीट अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या होगा? या तो ब्लास्ट हो जाएगा, या तो आग लग जाएगी, या तो गर्म हो जाएगा, या तो वो चीज जल जाएगी जिधर से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। बराबर है? देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लिखा है। शॉर्ट सर्किट में ऐसे कुछ होता है क्या? शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? जहां पे शॉर्ट सर्किट होता है देखो वहां पर आग लग जाती है, देखा है ना? यस और नो? जहां पे शॉर्ट सर्किट होगा वहां पर तुरंत आग लगती है कि नहीं लगती है? जरा हम उस चीज को कनेक्ट करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जरा सुनो, जनरली हमारे घर के अंदर, मैं तुमको अब एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, जनरली हमारे घर के अंदर 2 वायर्स होते हैं। क्या? हमारे घर के अंदर 2 वायर्स होते हैं। एक वायर जो होता है ना वो होता है लाइव। देखो मैं लिख रहा हूं, हमारे घर के अंदर है ना 2 वायर्स होते हैं, एक होता है लाइव और दूसरा होता है न्यूट्रल। ये हायर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल, और ये जो होता है ना
वो लोअर पोटेंशियल होता है। समझ में आ रही है बात? मैं सब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्लियर है? पक्का? अच्छा, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है 220 वोल्ट्स। हमारे घरों में इतना होता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे यहाँ करंट फ्लो होता है, वरना करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे यहाँ करंट फ्लो होता है, वरना करंट फ्लो नहीं होगा। पता है ना? फॉर फ्लोइंग द करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंपल्सरी, राइट? अच्छा, अब ये जो सब कुछ होता है ना, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो ग्राउंडेड होती है। क्या होती है? ग्राउंडेड। ग्राउंड पोटेंशियल को हम जीरो मानते हैं और ये ग्राउंडेड होती है। इसका अर्थिंग वायर से लेना देना है। हमने अर्थिंग वायर के बारे में बहुत पहले सीखा था, अर्थिंग वायर, है ना? राइट। अब देखो जरा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रिक वायर्स में से फ्लो होता है और वो चीजें ग्राउंडेड है, तो 0 और 220 का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है और चीजें बड़े आराम से चलती हैं। बराबर है? हाँ। तो अगर मान लो ये आपका फैन है, ये आपका स्विच बोर्ड है, इसमें एक प्लग है, ठीक है, ये लाइट का वायर है और ये न्यूट्रल का वायर है। कैन यू सी दिस? हाँ, तो करंट मस्त फ्लो होता है ऐसा, और फ्लो होकर के घूम करके सिस्टम में वापस आता है, राइट? और ये सर्किट कंप्लीट करता हुआ चलता है। अब देखो क्या होता है सीन, जरा समझो। अगर मान लो, अब नीचे अर्थिंग वर्थिंग सब होता है तो कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से वो अर्थिंग वगैरह से पास होता हुआ अपना काम कर जाता है। यहाँ आया, यहाँ से फिर वो अर्थिंग में निकलता हुआ निकल जाता है। पर मान लो अगर मैं किसी तरीके से ये पोर्शन यहाँ से ऐसा डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं, ये मिटा दूं और यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं। एक सवाल मुझसे किसी ने बहुत पहले किया था, याद है? कि सर अगर मान लो मेरे पास एक ही वायर है और मैंने उस वायर का एक एंड यहाँ पर डाल दिया और दूसरा एंड यहाँ पर डाल दिया, देखो ये एक ही वायर है, एक एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया, दूसरा एंड यहाँ पे डाल दिया, अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो है और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। जब पोटेंशियल, क्योंकि आपने यहाँ पे डिवाइस लगाया था तो रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? अपोजिंग द करंट, है ना? तो जब तक रेजिस्टेंस था तब तक करंट को वो अपने हिसाब से ले रहा था। अब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट को रोकने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या होगा? यहां से यहां इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? इनफाइनाइट करंट। और ये ग्राउंडेड जो हमने चीज की थी उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। जैसे ही इनफाइनाइट करंट फ्लो होता है, जैसे ही इनफाइनाइट करंट फ्लो होता है, वैसे ही इनफाइनाइट हीट भी प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही इनफाइनाइट हीट प्रोड्यूस होता है सब कुछ जल जाएगा। और ऐसे सिचुएशन को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन को हम, वेरी गुड, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब सर्किट छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब उसका रास्ता छोटा हो गया, मतलब उसको रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है, करंट को कोई अपोज ही नहीं करेगा, तो करंट अपने आप अपनी मर्जी से इनफाइनाइट फ्लो होगा। जब वो फ्लो होगा तो सब कुछ जल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा सर, ये शॉर्ट सर्किट कैसे कैसे हो सकता है? एक तो अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं, मतलब काटू वायर और दोनों वायर ज्वाइन कर दूं, ऐसे दो वायर जा रहे थे, है ना? यहाँ पे फैन था, दोनों वायर फैन में जा रहे थे, मैं फैन निकालूं और दोनों वायर को आपस में ज्वाइन कर लूं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। दूसरा, इस वायर और इस वायर के ऊपर पीवीसी कोटिंग होता है, मालूम है ना? विच इज एन इंसुलेटर। वो इंसुलेटर कोटिंग क्यों होता है? इसीलिए होता है कि दोनों वायर चिपके हुए होते हैं आपस में, पर क्योंकि कोटिंग है इसलिए दोनों के बीच में कुछ होता ही नहीं है, राइट? मान लो कभी बहुत पुराना होने की वजह से या गर्मी होने की वजह से या किसी रीजन से वो जो पीवीसी है वो पिघल जाए, क्योंकि वो है तो प्लास्टिक ना, या रबर, जो भी आप बोलिए, कभी रबर कभी प्लास्टिक, आप कुछ भी कंसिडर करिए, वो है तो इंसुलेटर। वो मान लो अगर पिघल जाए, राइट? यस, अगर पीवीसी या प्लास्टिक पिघल जाए तो क्या होगा? ये दोनों वायर कांटेक्ट में आ जाएंगे और जैसे वो कांटेक्ट में आएंगे शॉर्ट सर्किट होगा। बराबर है ना?
यस कि नो? सर तो इस शॉर्ट सर्किट से रोका कैसे जाए? चलो जरा कॉमन सेंस की बात करते हैं। मान लो आपके घर में किसी ने वायर डाल दिया और शॉर्ट सर्किट हुआ, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत जाके क्या करोगे? स्विच बंद कर दोगे। यस कि नो? आप क्या करोगे? स्विच बंद कर दोगे। करेक्ट है? स्विच बंद कर दोगे तो काम हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। सर मान लो स्विच जल गया, इतनी आग लगी कि मैं बोर्ड पे हाथ नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करूंगा? घर का मेन स्विच बंद कर दूंगा सर, घर का मेन स्विच बंद कर दूंगा। यस कि नो? बोर्ड का स्विच मान लो बहुत जबरदस्त आग लगी, मैं नहीं जा सकता उधर, है ना, तो मैं जाके घर का मेन स्विच बंद कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। बराबर है? राइट? आग लगी रहेगी, आग का अपना काम है, पर बाकी चीजें आगे नहीं होंगी, उसी आग से जो होना होगा वो होगा। मैं जाके मेन स्विच बंद कर दूंगा। सर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हादसा होता है जो मेन स्विच तक भी शायद ना पहुंचने दे हमको, ऐसा बड़ा हादसा भी तो हो सकता है। बराबर है? तो उसके लिए क्या होता है मालूम है? आपका जहां पर इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा, आप लोगों के घर के यहाँ पर जाकर देखिए, वहां पर मीटर लगा होगा, मीटर के बगल में एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज सर क्या होता है? मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्यूज क्या होता है। देखो बड़ा मजेदार चीज है, आपके घर के स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये है ट्रांसफॉर्मर, क्या? ट्रांसफॉर्मर। देखिए आप, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें से बहुत सारी जगहों पर वायर गया है। ये आपके बिल्डिंग का मीटर बोर्ड है, जहां पे आपका मीटर लगा होगा रीडिंग दिखाने के लिए। क्लियर? और इस मीटर में ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस मीटर में ट्रांसफॉर्मर से करंट आएगा। तो जब ट्रांसफॉर्मर से करंट इस मीटर में आएगा और उसके बाद जरा ध्यान से देखो आप, इस मीटर, ये मीटर भी एक्चुअली बाद में आता है, मीटर यहां पर आता है क्योंकि मीटर में से आपके घर में कनेक्शन आता है, घर का मेन स्विच, और इस मेन स्विच में से, समझ आ रही कि नहीं बात? पक्का है ना? ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मीटर्स होंगे, है ना, ये लाइन ट्रांसफार्मर से आपकी सोसाइटी में आती है, आपकी बिल्डिंग में आती है, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे मीटर्स होंगे सर, बहुत सारे मीटर्स होंगे, है ना, उसमें से आपके मीटर में से आपके घर में आता है। पर आपके मीटर में कौन सा मीटर दिखाता है? जितना करंट आप यूज करते हो, बराबर है ना? जितना करंट यहां से आ रहा है वो आपका मीटर दिखाता है क्या? नहीं सर, जितना करंट मैं यूज कर रहा हूं वो मेरा मीटर दिखाता है। मतलब कि मीटर में करंट यहां से आता है और मीटर आपको करंट देता है। अब जरा देखो मीटर एक्चुअली करंट नहीं देता, बट मीटर के थ्रू करंट जाता है। मीटर के पहले यहां पर एक चीज लगा होता है, इसी को हम फ्यूज बोलते हैं, इसी को हम फ्यूज बोलते हैं। समझ आ रहा है? पक्का? इसी को हम फ्यूज बोलते हैं। इसके बाद आपके मेन मीटर आपके घर के मेन स्विच में आता है। मेन स्विच में मान लिया आपके घर में 4 बोर्ड्स हैं, लाइट के 4 बोर्ड्स हैं, तो उन चारों बोर्ड्स में अलग अलग से कनेक्शन जाता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। क्लियर? पक्का? समझ आ रही है बात? ये पूरा चैनल समझो आप, ये आपका घर है, घर के 4 बोर्ड्स हैं, घर के अंदर ये मेन स्विच बोर्ड है, घर के अंदर का मेन डीपी है ना, ये आपका मीटर है, ये आपका फ्यूज है, और ये आपका करंट का ट्रांसफार्मर से लाइन है। अभी जरा देखो, प्लीज देखो यहाँ पर, अगर मान लो ट्रांसफार्मर से बहुत ज्यादा करंट यहाँ पर पहुंच गया, तो आपका ये जो फ्यूज है ना, फ्यूज कैसा होता है? फ्यूज एक पतला सा वायर है, फ्यूज एक पतला सा ऐसा वायर है, इस वायर का एक एंड जो है ना वो ट्रांसफार्मर को कनेक्टेड है, और दूसरा जो एंड है ना वो आपके मीटर को कनेक्टेड है। समझा? अगर मैं इस फ्यूज को काट दूं या फ्यूज निकाल लूं, तो जो ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा था वो आपके घर में नहीं जाएगा, क्योंकि फ्यूज पिघल गया, या फ्यूज कट गया, या फ्यूज जल गया। समझ में आ रही बात? पक्का? तो ये फ्यूज अगर ना होता, मान लो ना होता, तो यहां से जो भी करंट आता वो आपके घर में पक्का जाता, आप कुछ नहीं कर पाते, आपको यहां से बंद करना पड़ता, और हो सकता है आपको यहां से बंद करने के पहले ही आग लग जाए,
तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सेफ्टी मेजर के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर फ्यूज लगा देते हैं कि मान लो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो हो गई तो फ्यूज जल जाएगा और आपका घर बच जाएगा। गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? तो फ्यूज वायर इज दैट वायर विच हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये थोड़ी सी ज्यादा हीट पे, एक लिमिट के बाद में जैसे ही हीट होगा ना तुरंत जल जाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट जल जाएगा और आप बच जाएंगे। क्लियर? यस। और उसी तरह से आजकल तो घरों में अंदर भी फ्यूज होने लग गए हैं, आप अंदर भी फ्यूज लगा सकते हो, आपके ऊपर है, वो आपका अपना काम। ये आपने 2 जैकेट पहना कि 4 जैकेट पहना कि 5 जैकेट पहना, वो आपका काम, लेकिन एक जैकेट कंपलसरी है। बात समझ में आ रहा है ना? बारिश हो रही है तो आपके पास एक बारिश से बचने का चीज होना चाहिए। आप छाता भी लेके जाओ, रेनकोट भी लेके जाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। क्लियर? तो उसी तरह से कम एक फ्यूज इज कंपलसरी, बाकी आपकी मर्जी है। उसी तरह से ट्रांसफॉर्मर, आपने कभी देखा है गर्मी वगैरह के मौसम में ट्रांसफॉर्मर जल जाता है, ट्रांसफॉर्मर जल जाता है, होता है कि नहीं होता है? आवाज आती है जोर से ब्रूम करके और पूरा ट्रांसफॉर्मर जल गया, ऐसा होता है ना? लोग बोलते हैं अरे ट्रांसफॉर्मर जल गया, ट्रांसफॉर्मर जल गया। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर नहीं जलता है, वहां पे होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी एक फ्यूज जैसा अरेंजमेंट होता है। अब जब हर घर के अंदर ट्रांसफॉर्मर से हम एनर्जी को खींचते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर से एनर्जी को खींचते हैं, ट्रांसफॉर्मर सोर्स से एनर्जी को खींचता है, तो एमएससीबी से ट्रांसफॉर्मर खींचता है, ट्रांसफॉर्मर से हम खींचते हैं। हम जितना एनर्जी खींचेंगे ट्रांसफॉर्मर उतना ही एनर्जी उधर से खींचेगा, बराबर है? हाँ। अब होता क्या है, मान लो 10 घर है, गर्मी के मौसम में सबको एनर्जी चाहिए, कोई कूलर लगा रहा है, कोई एसी लगा रहा है, कोई फैन लगा रहा है, 10-10 फैन चल रहा है घर के अंदर, है ना? ये सब कुछ हो रहा है। जब ये सारा सीन हो रहा है तो ऐसे टाइम पे ट्रांसफॉर्मर से एनर्जी ज्यादा खींची जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक फिजिकल चीज है, उसका तो एक लिमिटेशन होगा ना, उसकी एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा एनर्जी वो नहीं खींच सकता, राइट? फिर भी अगर आप उसको एनर्जी देंगे, फिर भी उसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट की वजह से वो जल जाएगा, क्योंकि वहां पे हीट जनरेट हो जाता है और वो जलने की वजह से आपका सर्किट कट जाएगा। जब आपका सर्किट कट जाएगा तो आप थोड़े से समय के लिए रीस्टेट हो जाएंगे, चीजें फिर स्टेबल होंगी, जोड़ा जाएगा और फिर से आपके हाथ में करंट आ जाएगा, हाथ में मतलब घर में करंट आ जाएगा। क्लियर? राइट? तो इस तरह का फ्यूज का अरेंजमेंट दोनों जगह पर किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे होम और ट्रांसफार्मर दोनों लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? पक्का? तो हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड फ्यूज? यस और नो? Concept of short circuit and fuse, is it understood by you or not? Any doubt? Any doubt? और इस सब में हीट जनरेट कौन करता है? हीट जनरेट कौन करता है? सर करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है सर 220 वोल्ट आपके घर के अंदर। नील गौड़ समझ में आया? नील गौड़, शशांक तिवारी, मानसी शर्मा, समझ में आया? प्लीज नोट दिस डाउन। ये डायग्राम भी आप लोग कहीं पर बना लो अपनी मर्जी से, बाकी चीजें नोट करो क्विक। जल्दी से डायग्राम बना लो और बाकी चीजें नोट करो। रिकॉर्डिंग पीपल विल पॉज देयर वीडियो एंड देन रिकॉर्ड। बस प्लीज नोट दिस डाउन। So now we'll see few numerical questions which are already there in your book. Okay, I'll just share the screen. Okay, that's what we do. Let us share the screen in the next lecture. That would be better because we just have got very less time remaining, right? So in this lecture we have just got through all the formulae, got through all the basic concepts and important. See, these are the questions which will come in your exam related to short circuit, fuse. Okay, the why bulb has got the tungsten wire only, what is the reason,
Okay, so what is the application of heating? Give the example or the application of heating effect of electric current. These questions will come in your exam. Okay, so before you come to the next lecture, make sure you are preparing those questions well. Okay, right? So if possible from your side, try to prepare simultaneously for your board examinations as well. It will be really a very good decision if you people can make it happen, right? Yes, so what you do is go through all the things which we have done till this particular point. We have not solved any numericals at least up till this point, right? So the numericals will be there from the next lecture. It is already there in your textbook. If you people have got the textbook already available with you, just go through the link. You will find some questions which are solved examples. Okay, I want you to solve those examples without looking at solutions. Don't look at solutions, just look at the question, right, given by yourself, right, given to find and then solve, and check your capability. Don't just copy, don't cheat yourself. Just don't just go there, copy things and complete the homework. That's something which is not needed. If you're doing homework like this, तो मत करो. अगर आप ऐसा कर रहे हो कि होमवर्क कंप्लीट करना है इसलिए आपने कहीं से कॉपी करके किताब में छाप लिया और दिखा रहे हो, तो मत करो होमवर्क. आई डोंट नीड सच होमवर्क्स, राइट? यस, डू होमवर्क विद कंप्लीट ऑनेस्टी टू योरसेल्फ. आप वो पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, उसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग जहां तक देखा है उसके आगे क्वेश्चंस है, सॉल्व एग्जांपल्स ही है, वही कर. क्वेश्चन पढ़ना है आपको, खुद से सॉल्व करना है विदाउट लुकिंग एट सोल्यूशन. यू नो ऑल द फॉर्मूले एंड यू कैन सॉल्व द सम. मैंने कहा ना, कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस है, 4 चीजों की मैंने बात की थी, उसमें से 3 खास इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, आपको फॉर्मूला आना चाहिए. दूसरा, डेरिवेशन आना चाहिए. तीसरा, आप उस सिनेरियो को, उस सीन को समझ करके एक हल्का सा डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए. अगर आपको ये 3 चीजें अच्छे से आती हैं तो सॉल्व करना चौथा तो आपको आ ही जाएगा. कैलकुलेशन आपको बेसिक है, वो आता ही है, राइट? Yes, so make sure you people are understanding this and doing it very, very well. I hope you will solve some numericals as well before you come for the next lecture, right? Next lecture is going to be on Saturday. Okay, so see you all next week. Goodbye, take care.